Hi viewers, time to tag you about the information of another beautiful event which is going to happen here in our community. We are talking about Sur Sangam show which is happening on September 9, 7 p.m. Right now, I have the director of that show, Shanu Kaushik, with me. She's going to introduce us with the all artists who are going to sing and perform, and we will be talking about their journey. Welcome to my show, Shanu Kaushik. Thank you so much. Along with Shanu is sitting the singer Bailey Ahmed. Welcome. And along with him is none other than Mohsin Shaukat Ali, the famous son of Mr. Shaukat Ali, Ustad Shaukat Ali Sahab. So welcome. I welcome all of you here, and our viewers want to know about the details of the program. We will start with the director, Ms. Shanu Kaushik. Would you like to introduce all of your programming? Thank you so much for the wonderful intro. Yeah, the show is happening on September the 9th at Preet Palace Banquet Hall in Mississauga. The show will start at 7 p.m. and the address for the Preet Palace Banquet Hall is 2385 Kennedy Road. शो जो है ये बिल्कुल म्यूज़िकल इवेंट है. इसमें हमारे डिफरेंट सिंगर्स होंगे कनाडा से, इंडिया से, पाकिस्तान से. उसमें हर तरह की वैरायटी होगी ना. उसमें हम लोग सूफ़ी गायकी जो कि मोहसिन जी इसमें काफ़ी माहिर हैं वो भी होगा. उसमें हमारे बॉलीवुड सिंगर बेलीज जी भी होंगे जो अपने हर तरह की बॉलीवुड नंबर गाएंगे, और महेश मुलवानी जो कि क्लासिकल सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स ज़्यादातर गाएंगे. उसमें हमारे साथ एक ब्यूटीफुल सिंगर हैं, उनका नाम है मीना दालवी, जो शो में बाद में आप आएंगी, वो भी गाना गाएंगी. तो शो के साथ साथ, गानों के साथ साथ हमारे एक लाइव डीजे भी होगा, एंड इसमें खाना भी है, और यू नो लाइव डीजे एंटरटेनमेंट, द फुल पैकेज इज़ इंक्लूडेड इन दैट शो. So, before we go to our artists, I would like you to tell our viewers that what is the best way of getting the tickets, or to contact who and how? Sure. It's a good question. You can get the tickets in 3 ways. You can either call me directly. My phone number is 416-659-1002. You can also call our event manager. Her name is Sangeeta Mulwani, who will be available in the show later on. Her phone number is 647-966-0767. You can also call Lakshmi. She's also one of our event organizer, and her phone number is 289-654-0101. You can also pick up the tickets at the location, which is Preet Palace Banquet Hall, located again at 2385 Kennedy Road in Mississauga. We will come back to our artists now. Bailey Ahmed Sahab, you are so good in ghazal singing and Bollywood singing. So let's talk something about that. Ghazal itself, writing, those poets who write ghazals, they have to go through a special technique. So while singing ghazals, do you think there is a special technique for that or not? हाँ बिल्कुल. गज़ल में है एक्सप्रेशंस होने चाहिए, उसकी अदायगी, अल्फाजों पे ज़ोर, और यही गज़ल का निचोड़ है कि गज़ल की जो प्रेजेंटेशन है वो उसी माहौल की हो, उसी तरीक़े से पेश की जाए तो और ज़्यादा लुत्फ़ आता है. कमिंग बैक, हमारे बॉलीवुड के गाने आप गाते हैं और गज़ल्स गाते हैं, तो गज़ल्स को पिक करने की कोई ख़ास वजह थी, बॉलीवुड को चूज़ करने की कोई ख़ास वजह थी, या जस्ट एक एडवेंचर होता है और फिर एक लर्निंग होती है, उस प्रोसेस के तहत आपने ऐसा किया? गज़लों का मुझे शुरू से शौक़ रहा, और गज़लों में यह है कि उनके अल्फाजों की अदायगी मुझे बहुत अच्छी लगी, और फिर बॉलीवुड का भी शौक़ रहा. मतलब पुराने जैसे रफ़ी साहब हैं, किशोरदा हैं, मुकेश साहब हैं, और जो नए सिंगर्स हैं उनको जब सुनता हूँ मैं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं. तो गज़ल का अपना अलग मकाम है, बॉलीवुड सिंगिंग जो है वो डिफरेंट एंटरटेनमेंट है, तो मैं दोनों को पसंद करता हूँ. दोनों के साथ चलते हैं. अब आपके साथ हमारे जो बड़े ही खूबसूरत नौजवान मोहसिन शौकत अली साहब, हु इज़ सन ऑफ उस्ताद शौकत अली साहब, हु इज़ अ वेरी फेमस Sufi, along with culturally very diverse person who has got that shrilling voice of Punjab, which represents all Punjabis around the world. तो अब आप ये बताइए कि आपकी एक तो आपको विरासत में मिला ये सब कुछ, आपके वालिद की बहुत बड़ी लेगेसी है जिसको आप लेकर के जा रहे हैं, लेकिन क्या इस फील्ड को चुनने की कोई ख़ास वजह थी? क्या आपको ये शुरू से ये एहसास था कि आप इसके लिए परफेक्ट हैं?
सबसे पहले तो हलीमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया टैग टीवी का कि आपने मुझे याद किया। शोनू कौशिक जी की बड़ी खूबसूरत एक काविश है, मुझे भी एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है बॉलीवुड में भी और बाकी भी। देखिए बात ये है, आर्टिस्ट यहाँ तो होता है या नहीं होता। जेनेटिकली कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं जो लकीली मुझे मेरे फादर की तरफ से मिली हैं। फिर ये है कि मेरा जो ब्रॉटअप हुआ वो जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, जैसे लाइक मेहंदी हसन साहब हैं या ग़ुलाम अली साहब हैं या परवेज़ मेहंदी हैं या जितने भी हैं, इन लोगों को देखते हुए हुआ। तो मैंने देखा कि एक तो सुर की माफ़ी नहीं है, किसी भी फील्ड में जाएं सुर में काम करें, चाहे वो पॉप है, चाहे वो फोक है, चाहे गज़ल है, चाहे कव्वाली गीत है। तो कोशिश करता हूँ कि उससे इंसाफ कर सकूँ, बाकी ये सुनने वालों पे है। आपको मिलकर और आपके प्रोग्राम को देखकर पंजाब के कल्चर का एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। जी। तो क्या आप इसके लिए बहुत इंटेंशनल कोशिश करते हैं कि आपने इसके ऊपर काम किया है, कोई इंटेंशनल एफर्ट है या ये बस एक उस पे चल गया है? नहीं जी, पंजाबी मेरे खून में है। मैं आई फील प्राउड टू बी अ पंजाबी। मेरे जो वालिद हैं, जो लोग आप सारे जानते हैं, शौकत अली साहब, इज़ अ सिंबल ऑफ पंजाब। तो उनकी बहुत सी वो एक माइया गाता होता हूँ मैं कि डैडी का है कि कोई सुर्ख गुलाब होवे ते रब्बा तेरे कोल आइए शाला उथे भी पंजाब होवे। तो ये है, बाकी शाखें हैं सारी। उर्दू का बहुत सा आपको जैसे पता है, डैडी की गज़लें भी बहुत ज़्यादा हैं, मेरी नगमे भी बहुत हैं, सूफियाना अरफाना कलाम भी हैं। तो इस प्रोग्राम में ये जो शोनू जी कर रही हैं, इसमें मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उर्दू के बहुत से कलाम हैं इसमें मैं वो पेश करूं। जैसे आरफाना कलाम से इब्तिदा होती है मेरे कलामों से, प्रोग्राम से, और आपसे ज़्यादा बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। मैं टैग टीवी का हमेशा से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शोनू जी बताऊँ कि आज से 2 साल पहले जब मैं आया तो आई स्वेयर कि मैंने बहुत से कम इंटरव्यूज़ दिए हैं ऐसे कि मुझे लाजवाब, अक्सर हो जाता हूँ वैसे तो लाजवाब, लेकिन उन्होंने वाकई बाकमाल लाजवाब इंटरव्यू किया। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपकी मौसीकी के साथ जुड़त को देखकर बहुत अच्छा एहसास होता है, क्योंकि इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि हीर माया ठुमरी और सूफ़ी शायरी जो पंजाब की है, इसके साथ नौजवान नस्ल को जोड़ना एक बहुत बड़ा काम है। तो इस सिलसिले में आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आप एक ख़ास उम्र के उस नौजवान तबके को बिलोंग करते हैं जिसका रुझान इस वक्त पॉप और दूसरी तरफ ज़्यादा है कल्चर की जुड़त से। जी। तो आप इसके लिए क्या ख़ास कोशिश करते हैं? देखिए, पाकिस्तान में भी मैं इसको कोशिश ये करता हूँ कि आसान पोइट्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो। उर्दू पंजाबी की भी वो पोइट्री हो जो हमारे उर्दू के लोगों को भी टच करे। कहीं बॉलीवुड के लोग ज़्यादा उर्दू को जो है वो ज़रा थोड़ा सा हटते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि आसान, जिस तरह डैडी का एक गीत है कदीते हंस बोल में, वो उनका लिखा हुआ, उनकी कंपोजिशन है, वो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर था। जब वो बॉलीवुड में गया तो वो फिर वर्ल्ड वाइड मज़ीद उसको हिट हो गया। तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आसान पोइट्री दें, आसान कंपोजिशन हो और इनको इन्वॉल्व कर सकें। और बहुत ज़्यादा लाउड ज़रूरत नहीं है। सम टाइम एक हारमोनियम और एक गिटार के साथ आप माहौल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपका सोल जो भी आप गा रहे हैं उस पर आपको थोड़ा सा अबूर हासिल हो। तो ये मेरा ख्याल है ज़रूरी। अब मैं आप दोनों से ये सवाल करने जा रही हूँ कि आप दोनों के उस्ताद बहुत अहम होता है अपनी ज़िंदगी में सीखने के लिए, और उस उस्ताद के साथ जब आप शुरू करते हैं मौसीकी तो आप डिफरेंट लोगों को गाते हैं, लेकिन आपके अपना अंदर का आर्टिस्ट भी एक मौजूद होता है। तो वो काविश कहाँ पर है और उसको आप कहाँ देखते हैं? वो जो आप आर्टिस्ट हैं एज योर ओन आइडेंटिटी, वेयर डू यू प्लेस योर सेल्फ एंड वेयर इज़ योर जर्नी टूवर्ड्स दैट वन आफ्टर अनदर प्लीज़? हर एक बहुत अच्छा है। जैसा मोहसिन साहब ने कहा कि सुरों की ज़रूरत जो है वो, आप अगर सुर में हैं तो कोई भी आप गीत गाएं, कोई गज़ल गाएं, वो बहुत अच्छी लगती है। जहाँ तक उस्तादों का ताल्लुक़, उनका यही कहना है कि सुर और ताल ये जो है ये बैकबोन ऑफ एनी म्यूज़िक, चाहे वो गज़ल हो, ठुमरी हो, उसकी अदायगी जो है, फिर आप जब सुरों पे और ताल पे अबूर कर लेते हैं, फिर आती है आपकी अदायगी। उस अदायगी में फिर यह है कि आप इसको जहाँ रंग देना चाहें वहाँ आप ले जा सकते हैं। तो जहाँ तक उस्तादों का ताल्लुक़, उनको ये है कि वो आप मुकम्मल रहें, ठोस रहें और सुरों पे जमे रहें।
तो उस सफ़र में आपका अपनी क्या कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि किसी दूसरे को गा लेना और एक सफ़र के दौरान जैसे कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, म्यूज़िक में आप क्रिएट करते हैं, अपना एक गाना होता है, अपना एक सुर होता है, या अपनी एक आर्ट का एक्सप्रेशन का तरीका होता है, उसमें आप कहाँ महसूस करते हैं खुद को? क्योंकि वही है कि फ़िल्मी गाने जो हैं, जो बॉलीवुड के गाने हैं, उसमें तो आप बंधे हुए हैं, उसमें आप ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं डाल सकते। लेकिन जहाँ तक गज़लों का ताल्लुक़ है, उसमें वहाँ पर अदायगी आपकी, क्योंकि आपको एक फ्री मिलता है, आप रागों से खेल सकते हैं, आप हर तरफ से फिर वापस आ सकते हैं। तो गज़लों में मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं और उसमें ज़्यादा लुत्फ़ आता है, इसलिए कि आप बंधे में नहीं हैं, आप उसमें घूम सकते हैं, आप उसकी अपनी अदायगी कर सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है, ये आपको अपना वो देती है कि आप वहाँ पर अपने आप को नुमायाँ करें। मोहसिन जी, अब आपकी तरफ आएंगे, वही सवाल आपसे भी है। एक शेर है, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। बात ये है, काम वही है जो सारे पहले हो चुके हैं। मेरी खुशबख्ती है, मेरी फैमिली में शायरी भी है, डैडी शायरी करते हैं, और कुछ मुझे भी लिखने का शौक़ है। माल साहब भी हैं, जानते हैं, कंपोजिशंस करता हूँ। एक काविश की है मैंने पिछले दिनों, मैं वो सुनाता हूँ। एक बड़ी खूबसूरत सी एक उर्दू की गज़ल है कि आपकी इजाज़त से। जी इरशाद। तो फिर हम इस तरह करते, उसको भूल जाते हैं, किसी से दिल लगाते हैं। नहीं मानेगा पागल दिल, मगर उसको मनाते हैं, किसी से दिल लगाते हैं। हमें वो भूल पाएगा, ज़हूर ऐसा भी मुमकिन है, सो उसको आज़माते हैं, ज़रा सा खुद भी जलते हैं, ज़रा उसको जलाते हैं, किसी से दिल लगाते हैं। बहुत खूब। अब छोटा सा, क्योंकि अब ये पीसेस ही चल रहे हैं, तो एक आपसे भी प्लीज़ हो जाए एक। जी ज़रूर। मुझे ये बहुत सही सॉन्ग मुझे बड़ा पसंद है, ये अरिजीत साहब ने गाया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज़ ही जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मुझे अक्सर ये बात जहन में आती है कि जब आर्टिस्ट, पहले ज़माने में ये होता था कि जब कोई गाना लिखवाया जाता था तो उसके लिए एक माहौल बताया जाता था और फिर उस पर लिखा जाता था। तो अब जो गाना गाने वाले हैं उनकी अपनी चॉइस भी होती है कि वो क्या गाना चाहते हैं, और उसके अंदर आप अपने आर्ट को एक्सप्रेस करते हैं अपने इंटरनल जर्नी के तहत। तो आपकी कोई प्रेफरेंस होती है जब आप कलाम पिक करते हैं कि आप किसका कलाम पिक करेंगे, या
क्यों करेंगे? हलीमा जी, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो शायरी है वो रूह की, अपना गाने की जान है, गाने की रूह है। एक तो जिस तरह बहुत सी चीज़ें हैं, मैं बहुत बाद में पॉपुलर बाबा जी ने ये इसको किया, मैं बहुत आज से कोई 7-8 साल पहले मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। वो एक हमारे बहुत बड़े शायर हैं बाबा नजमी, उनका एक वो है कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, और मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी, जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफ़रां दा। इसी तरह एक मेरा उर्दू का एक गीत है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं उसका भी ऑडियो किया, वीडियो मैंने उसका जाके करना है, तो इंशाल्लाह वो जल्दी ऑनर होगा कि ये ज़रूरी तो नहीं लब पे सवाल आ जाए, ये ज़रूरी तो नहीं लब पे सवाल आ जाए, कितना अच्छा हो उसे खुद ही ख्याल आ जाए, और उस घड़ी तुझसे मैं पूछूंगा जहाँ कैसा है, उस घड़ी तुझसे मैं पूछूंगा जहाँ कैसा है, जब तेरे हुस्न पे थोड़ा सा सवाल आ जाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं है, ये कहीं भी नहीं है। यानी तो इसको मैं कंपोज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखें शौकत अली का बेटा होना जो बाहिस फ़ख्र भी है और बहुत बड़ा भी है, उससे ज़्यादा मुश्किल भी होता है कि आपने अपना एक अलग से रास्ता भी निकालना होता है। जैसे उस दिन भी महान साहब यहाँ बैठे हुए यही जिक्र कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें कर रहा हूँ मैं। अभी ईद पे एक मेरा एक गीत रिलीज़ हुआ है पंजाबी का, अस्सलाम वालेकुम उसका टाइटल है, और जैसे आप जानते हैं अस्सलाम वालेकुम नमस्कार या सत श्री अकाल है तो ब्लेसिंग है, तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम आख दई मेरे टोल नू जाके, कोई वसा नहीं ज़िंदगी दा मनु मिल जा आके। तो कोशिश करता रहता हूँ, अपनी क्रिएशन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस बारे में बेली जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आर्टिस्ट जो गाने वाला आर्टिस्ट है ख़ास तौर पे, उसके लिए ये बहुत अहम है कि वो क्या गाता है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में? बिल्कुल, जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि एक सिंगर के लिए जहाँ तक एक शायरी है उसको पिक करना, और फिर आता है कि आप उसको कैसे अदायगी होती है, और जब ज़ाहिर बात है जब शायरी अच्छी हो, उसका मैसेज अच्छा हो, तो फिर खुद ही खुद जो एक अंदर की जो आर्टिस्ट है वो बाहर आता है। जैसे एक गज़ल है, मैं आपको उसको सुनाता हूँ। मुझसे पर्दा है तो फिर ख्वाब में आते क्यों हो, मुझसे पर्दा है तो फिर ख्वाब में आते क्यों हो, प्यार की शम्मा मेरे दिल में जलाते क्यों हो, मुझसे पर्दा है तो फिर ना लगा पाऊंगा इल्ज़ाम मैं उस पर लोगों, ना लगा पाऊंगा इल्ज़ाम मैं उस पर लोगों, मेरे मुजरिम को मेरे सामने लाते क्यों हो, मेरे मुजरिम को मेरे सामने लाते क्यों हो, प्यार की शम्मा मेरे दिल में जलाते क्यों हो, मुझसे पर्दा है तो फिर। बहुत खूब, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। शनु कोशक जी, अब मैं चाहूँगी कि आप अपने बाकी की टीम को बुलाइए ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो उनके बारे में भी तारुफ हासिल करें और हम वापस उस प्रोग्राम की तरफ आएँ जिसके लिए कि हमारे नाजरीन इंतज़ार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं। ज़रूर ज़रूर, बहुत ज़रूर। जाने से पहले, इन दोनों को विदा करने से पहले मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी, सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मोहसिन जी ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, शौकत अली जी के साहिबजादे हैं, बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, आपने अभी उनको सुना। ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू हिम लाइव। बॉलीवुड सिंगर बेली शराशर अहमद, जिनकी आवाज़ आपने अभी सुनी, बहुत ही मधुर है। इस तरह के कई गाने, कई आपको हर तरह की फरमाइश जो है आप दे भी सकते हैं लाइव ऑन शो, लाइव ऑन द स्पॉट। आप
इन दोनों कलाकारों को सुनने के लिए ज़रूर आएँ सितंबर 9 को प्रीत पैलेस बैंक्वेट हॉल में। इन दोनों को हम विदा देंगे और आप साथ ही वापस आते हैं अगली 2 कलाकार आपके सामने लेके। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा हलीमा जी और टैग टीवी का कि आपने हमें ये मौका दिया और मेरे मेहमानों से है कि तशरीफ़ लाएं और मोहसिन साहब को सुनें जो कि बहुत खूबसूरत गाते हैं। नहीं सर, इस तरह है और कि मैं भी कुछ सुनाऊँगा आपको। ये सारा एक गुलदस्ता होता है और आप सब लोगों के बगैर मैं भी नहीं। स्पेशली थैंक्स टू हलीमा जी। हलीमा जी इतना खूबसूरत समझते हैं, बोलते हैं कि वो कहते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल। चुप अगर थे भरम तो कायम था, बात भी खोई इल्तिजा करके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब ब्रेक के बाद हम लेकर छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर लेकर आते हैं अपने दूसरे इस प्रोग्राम में शामिल लोगों को, टीम को। There's a lot of reasons why I'm really happy to be working with Greenish, but one of the main ones is their brand philosophy, which is also my personal philosophy, and that is embracing this passion for life. They develop products that help you live your life to the fullest in a wholesome and a healthy way. And Greenish products are really those that I trust, and I trust that you'll trust them as well, because it's all about living your life to the fullest. Welcome back to Tag Time for tagging the rest of the show for the information of the program, which is Sur Sangam, and the director of the program, Shanu Kaushik, is with me. She is going to introduce the rest of the team who is going to conduct this program. शनु कौशिक जी, आप हमारे नाजरीन को वहीं से सिलसिला शुरू कीजिए। बाकी के आर्टिस्ट जो आपके साथ काम करने जा रहे हैं, वो टीम मेंबर जो आपके साथ शामिल हैं, उनके इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू सो मच अलवीना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टीम एफर्ट है हम लोगों का। हम लोग सारे के सारे एक साथ मिलके शो को आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये खाली मेरा अकेले का एफर्ट नहीं है। बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं वो बहुत ही important people in our Mississauga, Brampton और local GTA एरिया। उनमें से एक हस्ती हैं, उनका नाम है मीना दालवी, जो कि कई शोज़ कर चुकी हैं, काफ़ी नोन नेम है इन सिंगिंग बॉलीवुड नंबर्स एंड ऑल दैट। उनका रिसेंटली एक म्यूज़िकल इवेंट भी होके चुका है, जो कि एक म्यूज़िकल ड्रामा जो उन्होंने किया था देवदास, उसमें भी उन्होंने अपनी गायकी के काफ़ी माहिर ने दिखाया है कि कितना सुंदर ये गा सकती हैं। वो आज मेरे साथ हैं और वो शो में भी हमारे साथ होंगी उस टाइम पे। मीना दालवी जी हर तरह के गाने गाती हैं। ये बॉलीवुड सिंगिंग भी करती हैं और क्लासिकल भी एंड गज़ल भी, हर तरह के, हर लैंग्वेज में। आप उनको बस सिर्फ अपनी फरमाइश दीजिए और आप उनको सुन सकते हैं। वो हमारे साथ बैठी हुई हैं यहाँ पे मीना दालवी। एंड हमारी दूसरी तरफ बैठी हुई हैं, वो है हमारी प्रोग्राम मैनेजर एंड इवेंट ऑर्गेनाइज़र एज वेल। उनका नाम है संगीता मुलवानी। संगीता मुलवानी एक एक्सपर्ट ऑर्गेनाइज़र हैं, जिनको अच्छी तरह से पता है कि कब क्या आना चाहिए, किस तरह से शो को आगे बढ़ाना चाहिए। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो हमारे साथ हमारे शो में उस दिन भी शामिल होंगी। आप किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए उसके अंदर पैशन होना ज़रूरी है। हाँ। और आई एम श्योर कि आप दोनों जो हैं ख़वातीन, इनका सिंगिंग के साथ बहुत पैशन होगा, तो आप उसको लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम मीना जी आपसे शुरू करते हैं। आप अपने इस सफ़र के बारे में कुछ नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए कि आपको क्या चीज़ इंस्पायर की जो आपने इस फील्ड को चुना और इसकी मुश्किलात क्या रहीं। Thank you so much. First of all, thank you so much for including me in this show. And पहले से ही from childhood I would say कि I am brought up listening to music, और फिर उसके बाद जैसे जैसे like I started realizing that okay I can sing, तो धीरे धीरे फिर मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। और जैसे ही ट्रेनिंग लेनी शुरू करी कि जैसे डीप डाउन में उसमें जैसे डूबती गई, एंड I saw the ocean of music and I realized that it is such a huge ocean कि wherein learning will never end. I am still learning and और एक मुझे ऐसा लगता है कि चलो भगवान ने मुझे थोड़ा सा कुछ दिया है, तो मैं उसका पूरा यूज़ करके like I should keep learning and I should keep performing and तो फिर धीरे धीरे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती गई। इंडिया में भी मैं 30 साल से स्टेज परफॉर्मेंस दे रही हूँ, तो इंडिया में ज़्यादातर मैं फोक, गुजराती, डांडिया
भी गाती थी और बॉलीवुड भी गाती थी यहाँ पे भी। और क्लासिकल ट्रेनिंग जो है वो बेस होने से लाइक जैसे सुर की पकड़ और वो सब हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो क्लासिकल की ट्रेनिंग है वो हम कुछ भी गाए, जो भी गाए उसमें फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो ऑन। तो संगीता जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। संगीतांजलि आपका इंस्टीट्यूशन है जो आप चलाती हैं। म्यूज़िक सिखाने से प्रोग्राम मैनेजमेंट और फिर उसका एमसी होना, इस सारे के सारे सफ़र में आप क्या समझती हैं? आप अपने नाज़रीन के साथ क्या शेयर करना चाहेंगी? ज़रूर। सबसे पहले मैं हलीमा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, मैं आपको सुनती रहती हूँ, आपके हर टीवी शो को। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप होस्ट करती हैं और बोलती हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और मैं आपसे मिलने की भी बहुत कोशिश कर रही थी, तो आज बड़ी अच्छा लगा कि आई एम द पार्ट ऑफ द टैग टीवी। और उसके बाद आपने मुझसे पूछा कि म्यूज़िक से लेकर और एमसी तक का जो मेरी जर्नी है। बेसिकली मेरे जो हस्बैंड हैं महेश मुलवानी, उनको यहाँ पे लोकली सब लोग जानते हैं बिकॉज़ हमारा म्यूज़िक स्कूल भी है, संगीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक के नाम से मिसिसागा में है। और वो वर्सेटाइल सिंगर हैं, बट उनका जॉनरे जो है क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल फील्ड है। एंड ही टीचेस ऑल द इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल म्यूज़िक, एंड साथ में वो अच्छे परफॉर्मर भी हैं। तो मेरा जो फील्ड था वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री था, और मैं उनके साथ जुड़ गई आके। जब हमारी शादी हुई तो कनाडा में आ गए, और फिर यहाँ आके हर लोग अपने अपने फील्ड में उनका पैशन था, और तो देन आई जॉइंड हिम। सो बेसिकली मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उनके इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती हूँ। और इट्स बीन नाउ यू कैन जस्ट से 18 years I've been doing it, and I feel now it's my passion as well, and I enjoy it doing it. I think everything goes with passion. The people who are dedicated to art in this time, in this period, they have to understand that they have to have that passion and thrive from inside to do something. So it's very appreciative that you are doing this. So regarding the program, you're doing the MC. So what should people expect? What they are going to get through you? Sure. Well, MC का रोल ये होता है कि सबसे पहले वो इंट्रो अपना लोगों को कंफर्टेबल कर दे, ताकि शो में क्या क्या होने वाला है जो कि मैं आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। और हमारे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स जो हैं उनका भी इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको। और जो आप मेरे से पूछना चाहें या आप अपनी फरमाइशें भी देना चाहें तो वो भी मेरे पास आके आप मुझे भेज सकते हैं। तो उसका भी हम, क्योंकि बहुत सारी फरमाइशें होंगी, तो हम एक लकी ड्रॉ करेंगे उस हिसाब से, और हम एक बास्केट बना के रखेंगे, आप अपनी फरमाइशें डाल सकते हैं। सो जो हम पूरी कर सकेंगे हम साथ के साथ पूरी करते जाएंगे। और जो प्रोग्राम में आप इस प्रोग्राम में सुनने वाले हैं गज़ल्स, बॉलीवुड सॉन्ग, सूफ़ी सिंगिंग, ऑल मिक्स्ड। सो आप बहुत आनंद आने वाला है इस शो में आपको, और आई एम श्योर एवरीबडी इज़ गोइंग टू एंजॉय, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव लॉट ऑफ पीपल। So let's hope for the best. Shinu Kaushik ji, back to you. Would you like to once again tell about the date, day, contact number and the details of your program? Absolutely. Once again, the date is September the 9th. Show will start at 7 p.m. sharp. We'll have it on at Preet Palace Banquet Hall, which is located at 5835 Kennedy Road in Mississauga. टिकट आप 3 तरह से ले सकते हैं, या आप मुझे कॉल करें। मेरा नाम है शिनु कौशिक और मेरा कॉल नंबर है सेल फ़ोन नंबर 416-659-1002। आप टिकट हमारे प्रोग्राम मैनेजर संगीता मुलवानी से भी ले सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर आपको संगीता खुद ही देर में खुद ही देंगी। और तीसरा आप लक्ष्मी, जो कि हमारे इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, she can also deliver the tickets to you. Her phone number is 289-654-0101. अगर आप उस दिन ही टिकट लेना चाहते हैं जिस दिन शो है, तो आप प्रीत पैलेस बैंक्वेट हॉल से भी टिकट ले सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में और शो को आगे क्या है, या आपको संगीता आप कुछ देर में आपको थोड़ी में बताएगी कि किस तरह से आप अपनी टेबल रिज़र्व कर सकते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट हमने क्या किया हुआ है। मैं कुछ एक और बात कहना चाहूँगी हलवीना हमारे शो के बारे में। इस शो के 2 सेगमेंट्स हैं।
पहला सेगमेंट है, इसमें खाली सिंगिंग होगी। हमारे लाइव सिंगर्स मोहसिन शौकत अली जी, बेली जी, महेश मुलवानी जी, मीना दालवी जी, ये सब आपकी फरमाइशें पूरी करेंगे। आपका पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके लिए मधुर और बहुत ही सुंदर गाने आपके लिए लेके आएँ। सिंगिंग के बाद हमारा सेकंड सेगमेंट शुरू होगा, जिसमें हमारा डांस फ्लोर खुल जाएगा। लाइव डीजे, उसमें मीना दालवी जी एंड हमारे बेली जी भी लाइव डीजे के गाने आपके लिए लेके आएंगे। साथ ही साथ हमारा म्यूज़िकल डीजे एंटरटेनमेंट का पूरा प्रोग्राम आपका जो है इंतज़ाम किया गया है। तो आप डांस के शूज़ अपने तैयार रखिए और डांस कीजिएगा। हमारा शो शुरू होगा शाम 7 बजे, मगर बंद होने का कोई टाइम नहीं है। हो सकता है कि 1 बजे या 2 बजे, जब तक भी आप चाहें आप हमारे साथ रह सकते हैं और शो को एंजॉय कर सकते हैं। शो की इन्फॉर्मेशंस तो आपको मिल गई। अब हम चाहेंगे कि मीना दालवी जी, क्योंकि वो यहाँ मौजूद हैं, तो इसका फ़ायदा उठाया जाए और एक खूबसूरत सा इस वक्त के लिए कोई शेयर गाना हो जाए नाज़रीन के साथ। ज़रूर। आज जन्माष्टमी है, तो मैं कृष्ण से रिलेटेड, नंद से रिलेटेड फिल्मी गाना गाऊंगी। मोहे रंग तो लाल, मोहे रंग तो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। देखो देखो तुझको मैं होके निहार, देखो देखो तुझको मैं होके निहार, चुनो कोरा मोरा कांच सा तन, नैन भर क्या रहे निहार, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। वाह, बहुत ही खूबसूरत। संगीता जी, अब आप प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले नाजरीन को कोई ख़ास बात बताना चाहें इसी प्रोग्राम से रिलेटेड जो कि आप करने जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं सबको कहूँगी तहे दिल से शुक्रिया, और आप ज़रूर आएँ हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जो गाने वाले हैं और आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं शो। और शुन्नू जी ने बहुत एफ़र्ट डाला है, और शुन्नू जी हमारी मैनेजर हैं, तो वो भी बहुत लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव एवरीवन। ये उनका दूसरा शो है शुन्नू जी का, एक मैं उनके साथ पहले भी एक शो कर चुकी हूँ। सो वी वांट लॉट ऑफ पीपल डेफिनेटली, एंड मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ शो के बारे में। जो शो है 7 बजे शुरू होगा, एंड इट्स ऑन प्रीत पैलेस, कैनेडी रोड पे है ये। और टिकट्स के लिए शुन्नू जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने नंबर दिया है, और लक्ष्मी जी हैं जो हमारी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, उनको भी कॉल कर सकते हैं। मुझे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 6479660767। मैं संगीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक से बिलोंग करती हूँ, सो महेश जी को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो इस शो में गाने वाले हैं। मैं उनकी वाइफ हूँ, और आई वुड प्रेफर एंड लव ऑल द ऑडियंसेस, और उनके जितने भी शागिर्द हैं सब लोग आए शो में। और सीटिंग जो अरेंजमेंट है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है, और जितना आप जल्दी आएंगे तो आप आराम से अपने हिसाब से अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट्स पे बैठ सकते हैं। और इट्स ऑन अ फ्राइडे, सो वी वुड प्रेफर एवरीवन टू कम एंड एंजॉय द स्नैक्स, देयर इज़ डिनर एंड सब कुछ वहाँ पे रहेगा, खाने पीने का भी सारा इंतज़ाम है। टैग टीवी हमारे साथ होगा जी, पूरे शो में, पूरे एंटायर शो में। हमारी खूबसूरत होस्ट हमारी जो टीवी की है अदमीना जी भी हमारे साथ होंगे। तो आप लोग सबके सब आएँ टैग टीवी के साथ, हमारे साथ, आप खूब एंजॉय करें उस दिन। शुनू कौशिक जी, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रोग्राम के लिए। आई होप यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।
नाजरीन, इन तमाम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये होता है कि यहाँ रहते हुए आप उस टेस्ट बड को एंजॉय कर सकें जिसको आप मिस करते हैं। उसके साथ साथ जो कुछ आर्ट और कल्चर में हमारा आर्टिस्ट यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है उसके बारे में कनेक्टिविटी बहुत अहम है। हम एक ऐसे खूबसूरत मुल्क में रहते हैं जिसके अंदर हमें हर सहूलत मैसर है। आर्टिस्ट किसी भी मुल्क का सरमाया होते हैं और जब आप उसके ऊपर काम करते हैं तो उसकी एप्रिसिएशन चाहते हैं। एप्रिसिएशन होती है ऐसे ही प्रोग्रामों में अपनी फैमिली के साथ शामिल होइए और देखिए कि वो लोग जिनको आप चाहते हैं सुनना चाहते हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। प्लीज़ अपने तमाम घर वालों के साथ एक दिन निकालिए और सुनिए गज़लें और सुनिए वो तमाम रंग जो मुख्तलिफ़ जगहों से आप तक पहुंच रहे हैं कनाडा में रहते हुए। इन अल्फाज के साथ मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.